Unacademy. Let's crack it. Ayushi, Yes, ma'am. introduce yourself to the board. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Ayushi. I am from Haridwar, Uttarakhand. I have done my BLLB honors from University of Allahabad, and I have completed in the year 2022. Thereafter, I started to give LLM entrance examination, and I'm also currently in the second semester of my LLM course in the same university. And I always wanted to appear for judicial service examination, and it is my first attempt to any judicial service examination. This is your first attempt. Yes, Okay. ma'am. So you did your graduation and you're also pursuing from post-graduation from University of Allahabad. Yes, ma'am. Okay. Ayushi, जैसे इनका नाम change हुआ from previously it was the city was known as Allahabad. Yes, Now it ma'am. is known as Prayagraj. Yes, ma'am. इस तरह आप कोई और बता सकती हैं 5 cities जिनका नाम change हुआ हो? Ma'am, one coming to my mind right now is Faizabad, which is being renamed to Ayodhya. And one more city, I'm exactly not remembering his name right now. It is also in UP. Something starts from M. Sorry, I'm not able to recall that name. Any other city? Sorry, ma'am, I'm not able to recall. It's okay. जैसे नाम चेंज होता है वैसे ही सिटीज के बाउंड्रीज भी चेंज होते हैं, बॉर्डर्स भी चेंज होते हैं, सिटीज के नहीं स्टेट के बॉर्डर भी चेंज होते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन में दिया गया है? Ma'am, Article 3 of Constitution of India. What is the procedure that is prescribed there? Ma'am, it is the prerogative of Parliament that it can alter the names and borders and other things related to the states without And any process or constitutional amendment that is followed under Article 368. okay, and is there a recommendation required? Sorry, ma'am, you're not audible. Is there any recommendation that is required by any authority? Ma'am, as far as I remember right now, that the president sends that to the state legislature once, and if they approve it, then they consider it, and if even they don't approve it, they do change the name or alter the borders. Okay. And since this is a type of amendment in the constitution, Yes, ma'am. what is the type of amendment? I mean, is it simple amendment by simple majority or by special majority? What is the type of amendment? Ma'am, it's a simple amendment. No special majority is required here. Speaking of simple and special, what is the difference between simple majority and special majority? Ma'am, the type of voting system that differs here. Like in simple majority, if we get 50 plus 1 votes, then the amendment passes on. But in special majority, we need 50 plus 1 vote, plus we need 2/3 of the members present and voting. Their vote also be required to pass any amendment of that degree.
And what is the difference between kidnapping and abduction? Okay, ma'am. Ma'am, kidnapping is what comes to my mind first is that kidnapping is an offense which is divided in two types. That is kidnapping from a lawful guardian and kidnapping from India under Indian Penal Code. And abduction is not a simpliciter offense. However, if the abduction is done with some intent of doing any offense, then it becomes an offense. Any other difference between the two, between kidnapping and abduction? Ma'am, like I said, that kidnapping is being divided in two parts, kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. Ma'am, kidnapping is an offense against the guardianship there, and abduction is an offense against that person only. And abduction and kidnapping, sorry, ma'am, one of them is also considered as a continuing offense. Which one is known as the continuing offense? Yes, ma'am. Can I take a second? Sure. Yes, ma'am. Ma'am, abduction. Abduction is the continuing offense. And why Yes, is it ma'am. so? Ma'am, because as till the period a person remains with the other person or any other place where he doesn't want to be, and the offense continues because against his will he is there in confinement or any other thing. Okay. There's this concept known as receiver, a person known as receiver. Yes, ma'am. Can you tell me where this where the provision relating to receiver is given? Ma'am, under Order 40 of Civil Procedure Code, this Okay. provision is given. Any other enactment in which this provision is given? Yes, ma'am, under CRPC, I'm remembering when the executive magistrate appoints receiver where there is a dispute related to immovable property. Correct. Any other enactments to your mind? No, ma'am. Only these 2 points are coming right now. Okay. Anything related to transfer of property? I'm giving you a hint. Receiver. Yes. Sorry, ma'am. I'm not able No to issues. recall. Read it once. My last question is, what are your hobbies? Ma'am, my hobbies include diary writing and I also enjoy badminton as a sport. Sorry, can you repeat? Ma'am, diary writing and badminton. Badminton. Yes, ma'am. मैडम आप ये बताइए 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का नाम क्या था? Sorry, sir. I'm not able to recall his name. 1975 में इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था उसके सामने कौन खड़े हुए थे जिन्होंने उनके चुनाव को चुनौती दी थी? उस विपक्षी नेता का नाम क्या था? Sir, Mr. Rajna Rai. ओके. ये 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाई थी? Sir, Article 352 of the Constitution of India. 352? Yes, sir. उस समय की देश की क्या परिस्थितियां थी? उस समय की तात्कालिक क्या परिस्थितियां थी उस समय? सर उन्होंने इमरजेंसी लगाया था इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे कि देश में बहुत इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, उस ग्राउंड पे उन्होंने लगाया था सर. क्या क्या मेन इंटरनल डिस्टरबेंस क्या हो गया था उस समय? सर जहां तक मुझे पता है बहुत संगठन बन रहे थे उस वक्त जो कि उनके गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते थे और सर उनकी जो अमेंडमेंट्स वो लेके आई थी सर उनके अगेंस्ट थे वो लोग. 42nd अमेंडमेंट जो 1976 या फिर तब आया था सर, तो उसलिए शायद वो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. अच्छा, ये आप अनुमान व्यक्त कर रहे हैं? यस सर. अच्छा, कोई बात नहीं. आप ये बताइए कि अमूल दूध पीता है इंडिया, इसमें अमूल का क्या अर्थ है? सर अमूल इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका ब्रांड नेम है सर, तो वो अपने नाम को यूज कर रहा है इसमें. नहीं, उसका पूरा वो किसका एब्रिविएशन है अमूल? सर एब्रिविएशन के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है. ये साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत उत्तराखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं?
सॉरी सर, मुझे जिला नहीं पता है। कोई बात नहीं। 1952 से लेकर के 1964 तक राज्यसभा के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर सदस्य थे। वे किस पार्टी से सदस्य थे? उन्हें किस पार्टी ने मनोनीत किया था? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने कोई कविता लिखी थी। उस कविता का शीर्षक याद है आपको? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये आपने भी इन दिनों में दो शब्द सुने होंगे, कुकी समुदाय और मैत्री समुदाय। यस सर। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सर। बताइए आप। सर, मणिपुर ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैती समाज के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी, तो गवर्नमेंट ने उसी के डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ ऑर्डर करने की किया। तो इसलिए दोनों समाज में मतभेद जारी हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये समाज के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए, क्योंकि शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स एंड और भी चीजों के लिए उनको हक मिल जाता है। तो इसीलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स और मतभेद स्टार्ट हो गए, जो कि बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ गए सर। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपाकम दोराय राजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? सर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया गया था इसमें। नो सर, इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत में आया है। सॉरी सर। नहीं, इसमें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट कर चुकी थी? इससे पहले चंपाकम दोराय राजन के पहले वर्डिक्ट। इसमें ये चंपाकम दोराय राजन आदमी है या औरत है? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। अच्छा, कोई बात नहीं। इस स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपाकम दोराय राजन के इस केस को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया? सर, आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट हुए, जिसमें कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 5। आर यू श्योर? क्लॉज 5? सर, 15 क्लॉज 4 और 5। सॉरी सर, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर, but the amendment was made in article 15 and 16 for providing reservation. अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है। Yes, कि यदि एक हिंदू इंटेस्टेट गुजर जाता है और अपने पीछे वो दो भाई, दो बहनें, माता, पिता और वाइफ, इन 7 सदस्यों को छोड़ के गुजरता है, तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन किस तरीके से होगा? सर, 2005 के अमेंडमेंट के बाद से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर जो डिफरेंस था सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसको खत्म कर दिया गया है। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए अगर विल नहीं बनी है या अलग से कोई वो करके नहीं गए हैं कुछ, तो वो जो सक्सेशन के नियम है उनके तहत डिवॉल्व होगी। वो किसको कितना शेयर मिलेगा एग्जैक्ट आप बताइए इसका आंसर। सर, एग्जैक्ट शेयर सर, दो भाई है, 2 बहनें हैं, ये 4 तो ये हो गए, फादर है, मदर है और वाइफ है, 7 सदस्य पीछे छोड़ के गुजरा है। सर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर प्रोवाइडेड, जो क्लास फर्स्ट हेयर्स होते हैं पहले तो उनको मिलेगा, तो उसमें मेरे हिसाब से वाइफ आती हैं, विडो का शेयर होता है सर, तो उनको मिलेगा। और माता पिता मेरे हिसाब से सर क्लास सेकेंड हेयर्स में आते हैं, तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे सर, क्योंकि क्लास 1 हेयर्स को प्रेफरेंस मिलता है क्लास 2 हेयर्स से, तो और सब लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे सर। यस, तो आपके हिसाब से केवल एक ही शेयर मिलेगा, वो उसकी विडो को मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा? सर, अगर बच्चे हैं तो उनको मिलेगा। नहीं, बच्चे तो कहा ही नहीं हमने आपको। नहीं सर, सिर्फ 2 भाई, 2 बहनें, माता पिता और वाइफ, 3 ये 4 और 3 7 जने हैं, तो सारा पूरा शेयर वो एक विडो वाइफ ही ले जाएगी आपके हिसाब से? सर, आयुषी जी, आपने बताया कि आपकी हॉबी डायरी राइटिंग है। यस मैम। आप बता सकते हैं डायरी राइटिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में? यस मैम, जो मुझे रियलाइज हुआ डायरी राइटिंग करते हुए, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाती हूँ, और दूसरी चीज मुझे ये पता चला कि जो बैलेंस ऑफ इमोशंस है वो काफी हद तक मुझे बेनिफिट हुआ उससे, कि कभी कभी हम ज्यादा गुस्सा होते हैं या दुखी होते हैं, तो मैं डायरी राइटिंग कर लेती हूँ। तो जब मैं डायरी राइटिंग करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं किसी मामूली वजह से ही गुस्सा हो रही हूँ, जो कि सही नहीं है। तो उससे मेरे
बिहेवियर एस्पेक्ट में काफी बदलाव मुझे महसूस हुए, तो मुझे अच्छा लगता है मैम लिखना। मेरा क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि डायरी राइटिंग हम खुद अपने आप से ही बातें करते हैं, हमें किसी थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल के टीनेजर सिर्फ इसी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है। यस मैम। मैम मुझे तो आपको नहीं लगता यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि हम डायरी राइटिंग को प्रेफरेंस दे दें और इस चीज को हम अवॉइड कर दें? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता, क्योंकि डायरी राइटिंग जो होती है वो हम एंड ऑफ द डे में करते हैं कि हमारे साथ आज क्या हुआ, हमने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, या फिर एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं हम डेली लिखें, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है तो हम उसे जरूर लिखना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसा दुख का कारण है या कोई सुखी होने की वजह है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और मैम जहाँ तक फ्रेंड्स की और सोशल लाइफ की बात है, तो मुझे लगता है डायरी राइटिंग से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम खुद से बात करके महसूस कर पाते हैं कि हम डिप्रेशन में या ऐसे जा रहे हैं, तो हमें सोशल लाइफ को अपने आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, अपना व्यवहार सही करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है मैम। चलिए ठीक है। दूसरी हॉबी आपने बताई बैडमिंटन, तो सिर्फ खेलना पसंद है या देखना भी पसंद है? मैम मुझे खेलना ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं कभी कभी देख लेती हूँ, ज्यादा नहीं देख पाती। कभी कभी देख लेते हैं। आप बता सकती हैं कि इंडिया का मेल प्लेयर कौन है अभी रिसेंट न्यूज में, बैडमिंटन प्लेयर? मैम मुझे अभी जो नाम याद आ रहा है वो मिस्टर एलवाई सुहास याद आ रहे हैं, जिन्होंने पैरालंपिक्स में भी सिल्वर मेडल विजेता रहे वो बैडमिंटन में। पैरालंपिक्स की बात करिए तो नेक्स्ट पैरालंपिक्स कब ऑर्गेनाइज होने वाले हैं और कहाँ पर? मैम वो 4 इयर्स की ड्यूरेशन में होते हैं ऑर्गेनाइज, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। डेफिनेटली, बट कहाँ होने वाले हैं? सॉरी मैम, मुझे याद नहीं आ रहा। ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं? मैम मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं गलत नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ पर आते हैं हम। आप ये बताइए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है और कहाँ पर रेलिवेंट होती है? मैम Section 9 of Indian Evidence Act talks about test identification, provides for test identification parade, and even under CRPC Section 54A and Section 291A provides for test identification parade. Ma'am, when the accused, सेक्शन 291, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। sorry ma'am, ma'am, when the police is not clear that who is the accused, or even the things are not clear, then the police or mainly in the investigation process or conduct test identification. ओके, क्या सेक्शन 291 जो आप सेक्शन बता रही हैं उसमें डॉक्यूमेंट के लिए भी किया जाता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है पूरा? Ma'am, as far as my little knowledge serves, ma'am, it is for the accused. I'm not sure, but it is for the accused. अक्यूज्ड के लिए तो आपने बता दिया सेक्शन 54A। जो Ma'am, आप ये सेक्शन 291 बोल रही हैं, क्या उसमें भी है ऐसा कुछ? sorry ma'am, I'm not फिर sure about this. कुछ तो डिफरेंस होगा तभी अलग अलग सेक्शंस रखें, राइट? Yes ma'am, I will read upon ठीक this. है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। Yes. जी, आप ये बताइए कि एक एग्जांपल है, ए अकेला रहता है घर में, आधी रात को उसके घर में उसको आवाज आती है, उसने देखा कि उसका मेन डोर जो है वो टूटा हुआ है और कोई एक पर्सन उसके घर में घुस रहा है। जी मैम। ये देखते हुए उसने उस पर्सन को शूट कर दिया, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। Yes ma'am. क्या यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस किया है? No ma'am. Ma'am, he is well Reason? within his right to private defense. सेक्शन? Ma'am, Section 103 of Indian Penal Code. क्यों, क्या प्रोविजन है 103 में? Ma'am, it provides that when the person can cause even the death of the aggressor when he related to property, when the offense is related to property. कुछ ऑफेंसेस हैं उस सेक्शन में, वो ऑफेंसेस बताइए। Yes, ma'am. Some coming to my mind right now are robbery, mischief by fire, and even the criminal trespass in a dwelling house if it is done at night, I guess. Is it criminal trespass? Sorry, ma'am, I'm not sure about this. What is difference between criminal trespass and house breaking? Ma'am, there is a difference. Criminal trespass is less serious offense, and it is a simpliciter. It is not necessary that it has been done in a house only. It can be on any property of a person. However, house break-in is necessarily done in a house
or in a dwelling house where a person resides or his property is there. Ma'am, in housebreaking. It is much graver offense. हाउस एंड ड्वेलिंग हाउस आपने वर्ड यूज किया है, Yes, ma'am. हम बता सकती हैं कि क्या होते हैं? Ma'am, difference? जी, हाउस एंड ड्वेलिंग हाउस आपने ये वर्ड यूज किए हैं दोनों. Yes, ma'am. Ma'am, व्हाट इज ड्वेलिंग हाउस? ma'am, that sense that coming to my mind right now is that dwelling house where the person lives and even his property may be there, maybe he's not residing. But if we say house in the sense, I'm using it in the wrong sense maybe. But for house, I think that it is considering, आर यू श्योर अबाउट दिस आंसर? ma'am, about dwelling house and house difference. यस. No, ma'am, I'm not sure. I'm only telling to what I'm feeling right now. चलिए ठीक है, आप ये बताइए आईपीसी में कितनी टाइप्स की पनिशमेंट्स होती है? Ma'am, 5 types of punishments are provided. बताइए. Ma'am, ma'am, death penalty, imprisonment for life, imprisonment of rigorous imprisonment or simple imprisonment, fine, and forfeiture of property. द फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी कोई पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में? कोई सेक्शन है? Sorry, ma'am. I guess I haven't read any section like this. Maybe it अच्छा, would- उसमें से एक पनिशमेंट रिपील हुई थी, Yes, ma'am. आप बता सकते हो वो पनिशमेंट कौन सी थी जिसको रिपील किया गया? Ma'am, that is transportation. क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? Ma'am, earlier in colonial period, the persons were transported to islands like Andaman and Nicobar. Some islands, from there, the prisoners cannot come back anyhow. So this was the imprisonment provided. चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन सीपीसी में कहाँ पर दिए गए? Ma'am, cross appeal and क्रॉस ऑब्जेक्शन. cross objection. Sorry, ma'am. I'm not aware about this. आयुष जी, आपका मॉक हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? आपको फीडबैक बताएंगे, आपके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स. सर स्टार्ट करेंगे प्लीज सर. हाँ मैडम, आपने सभी प्रश्नों का आंसर बड़े मुस्कुराते हुए दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है. आप पूरे टेन्योर के अंदर कहीं पर भी विचलित नहीं हुए. आपके ऊपर रैपिड फायर भी किया गया. हमने आपको बार बार लीगल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, फिर भी आप घबराए नहीं. लेकिन अभी लास्ट में आपने जो मैडम को एक आंसर, जो मैडम ने प्रश्न पूछा था, तो उसका आपको बड़ा टैक्टफुली आंसर देना चाहिए था. आपको वही आंसर देना था, राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल. आपने कहा आई डोंट नो या आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग. ये इस प्रकार का आंसर आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है. यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू आंसर, इस प्रकार का देना चाहिए. ताकि क्या है कि आप विज्ञ तो है सबसे, लेकिन अभी इस समय आपके बाहर निकल करके बाहर चीज नहीं आ रही है, ऐसा एक झलकना चाहिए ना. बाकी आपने हमारे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में हमने आपसे पूछा था, वो आपने 352 ठीक बताई. लेकिन उस समय आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है. यहाँ तक कि आपको सुमित्रा नंदन पंत, जो कि आपके ही गृह राज्य के वो है, उसके बारे में भी आप नहीं बता पाए. हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा था कि इसको किस इनकी सदस्यता 1952 से लेकर 64 तक कांग्रेस का ही तो राज्य था, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया था, तो आपको ये बताना था. और भारत पाक युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता लिखी थी, बड़ी फेमस कविता हुई है ना. तो इस तरीके से, और आपने वो मैती आदिवासी और कुकी आदिवासी का बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने. लेकिन वहीं पर आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट जज साहब थे, जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने फैसला दिया था, वो आप भूल गए. सर, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आया, मैंने पढ़ा कोई बात था. नहीं, वो कोई बात नहीं. आप लेकिन आप ये मत करना, आई डोंट नो, ये शब्द यूज मत करना आप, है ना. बाकी आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी, मतलब आप विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं कहीं पर भी, बहुत अच्छी तरह से आंसर, आई कांटेक्ट के हिसाब से आंसर दिया है. और आपका अटायर कैसा होना चाहिए, ये आपको हमारे महिला बोर्ड के सदस्य जो है वो आपको बताएंगे. तो उस दिन आप किस प्रकार की वेशभूषा पहन करके जाएं, जो कि और आप पर जच जाए, है ना. और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस. थैंक यू सर.
आयुषी, Yes, ma'am. जैसा सर ने बोला आपका इंटरव्यू अच्छा गया था, Yes, ma'am. आप थ्रू आउट आपका स्माइलिंग नेचर था, बिल्कुल इसको ऐसे ही मेंटेन कीजिएगा, कहीं भी जी, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी मैम. कहीं नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। Yes, ma'am. अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी देर में रिकॉल कर भी लेंगी तो अगर आप उनसे परमिशन ले सकती हैं कि इफ आई कुड टेक अ फ्यू सेकेंड्स Yes, ma'am. और इफ आई टेक अ मोमेंट, जो कि आपने किया भी। Yes, आप ma'am. साड़ी जरूर पहनेगा अगर पॉसिबल हो तो, अगर आप Yes, कैरी ma'am. कर रहे हैं साड़ी, Yes, साड़ी ma'am. पहनिए। I will be wearing sari with a blazer that day. करेक्ट, वैसे ही वही पहनेगा। Yes, ओके, ma'am. और कुछ जगह जहाँ आपकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जैसे कि किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था उसमें। कुछ और जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, एज का डिफरेंस होता है, फीमेल Yes, मेल, वो yes, ma'am. आप ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। Yes, ma'am. सिंस आपका ग्रेजुएशन एंड पीजी इलाहाबाद से हुआ है तो बहुत सारी सिटीज हैं, आपको पता ही होगा। बेंगलुरु का नाम चेंज हुआ है, वडोदरा का नाम चेंज हुआ है, Even अब Chennai, Madras. चेन्नई, मद्रास, अभी Yes, ma'am. रिसेंटली यूपी में ही पंडित दीनदयाल शर्मा हो गया है। Yes, ma'am. That was बहुत not सारे coming to हैं, my mind. That. बहुत सारे हैं। उस समय आपको मे स्ट्राइक नहीं किया होगा। Yes, ma'am. उसके बाद थोड़े से आप कंफ्यूज थे प्रोविजंस को लेकर, वो आपको अभी मैम भी बता देंगी, सलोनी मैम, उनके जो क्वेश्चंस थे उसमें Yes, आप ma'am. थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, वो आपको मैम अभी एक्सप्लेन कर देंगी। बाकी आपका अच्छा है। अच्छी बात ये भी है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। आयुषी, सबसे पहले प्लस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप फीडबैक मत लिखिए, फीडबैक आपको रिटर्न फीडबैक पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। Okay, ठीक है, ma'am. आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी तो आप प्रॉपर एनालाइज कर लीजिएगा उसको आराम से। ठीक है, Yes. प्लस पॉइंट की बात करते हैं। थ्रू आउट द इंटरव्यू स्माइलिंग फेस था, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लैंग्वेज पे कमांड भी अच्छा है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स पे आता है Hmm. तो एज सच कोई इतना बिगल नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बट कुछ चीजें हमें इंटरव्यू में ध्यान रखनी चाहिए ताकि इम्प्रेसिव रह जाए वो Yes, ma'am. इंटरव्यू हमारा। ठीक है, तो वो ध्यान रखने की चीज है कि जो मेन बेसिक प्रोविजंस होता है। Yes, ठीक है, ma'am. आप हाउस ब्रेकिंग, क्रिमिनल ट्रेसपास, कंफ्यूज हो गई। जो मेरा मेन क्वेश्चन था उसमें वो हाउस ब्रेकिंग ही हो रही थी, बट आपने उसको मेंशन ही नहीं किया। Yes, ma'am. ठीक है, हाउस ब्रेकिंग हो रही थी तभी तो 103 Yes, लगा, ma'am. Yes, ma'am. राइट? वो आपने मुझे मेंशन नहीं किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप केयरफुली सुनिए, अपने आप आंसर आपको आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका लीगल नॉलेज अच्छा है, जितना हमने देखा आपका लीगल नॉलेज अच्छा है। ठीक है, उसको बस मैडम आपको मैं अच्छे से मैडम एक जी मैं जी थोड़ा ऐड बिल्कुल करना चाहूंगा। बिल्कुल। प्रैक्टिकल जो हमने इनसे प्रश्न पूछा था वो प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन का, उसका राइट आंसर ये था कि उसके प्रॉपर्टी के दो ही हिस्से होंगे, मदर और विडो के अंदर होगा डिवोल्यूशन होगा, क्योंकि यही दो क्लास 1 के हेयर हैं, बाकी सारे क्लास 2 के हेयर हैं। Yes, sir. इसलिए आप ये ध्यान रखना कि हमने आपको चकराने के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, आप जी, उसे sir. ट्रैप हो गए। 2 भाई 2 बहनें और फादर ये पांचों सदस्य जो है वो क्लास Class 2 के one. हैं, Yes, sir. और विडो और मदर दोनों क्लास 1 की One है। है. तो ये ना आधा आधा हिस्सा प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा, ये इसका राइट आंसर है सेक्शन जी, sir. 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। जी, ओके, sir. जी, sir. यस मैडम, यू प्लीज आप इनके वेशभूषा के बारे में कुछ बता दीजिए इनको। जी जी, मैं सर उसी पे ही आ रही थी कि आपको सारी मैम ने बता दिया है, बिल्कुल Yes, ma'am. वही बेटर लगता है। प्लस आपकी हेयर स्टाइल मैं देख रही हूँ कि आपकी कर्ली हेयर्स है। ठीक है, Yes, ma'am. कर्ली हेयर है आपके, तो आपको या तो आप बन पे चले जाइए या प्रॉपर पूरी ब्रेड। ठीक है, ओपन हेयर नहीं रखना है, Yes, ma'am. क्योंकि वहां अगर जरा से भी हवा हुई या कुछ हुआ तो आपके बाल आगे आ जाएंगे। तो आप Yes, ma'am. प्रॉपर पिन अप करके ब्रेड या बन कैरी करिए, बाकी Yes, आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइलिंग फेस रखना है, सबसे Okay. इम्प्रेसिव वही होता है इंटरव्यू में। ठीक है, जो आपके पास है। Thank you. डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आप बन जाए, हमारी बेस्ट विशेस है आपके पास। Thank you, ma'am.